والقلم وما يسطرون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں. دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے محتمم حضرت مولانا احمد معاذ رشادی سپرد خاک ہزاروں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت. ایکسیلنٹ انگلش اسکول میں شعبہ حفظ کا آغاز. افتتاحی تقریب میں علماء اکرام کی شرکت. جمعیت علماء حلقہ میرا بھائندر کا مثالی قدم. اگر میں قتل و غارت گری پر اتر آؤں گا تو کوئی نہیں بچے گا. مغربی بنگال کے بی جے پی صدر کا متنازع بیان. ستارہ میچری کو سپریم کورٹ نے دی کشمیر جانے کی اجازت، ساتھ رکھی یہ بھی شرط. یو پی میں خواتین محفوظ نہیں، زانیوں کے ساتھ کھڑی ہے بی جے پی حکومت. پرینکا گاندھی کا بیان. بہار چھیڑخانی کی مخالفت کرنے پر تیزاب سے حملہ، 13 افراد زخمی. ہم کسی ایجنسی سے نہیں ڈرتے، میں جیل گئی تو یہ میرے لیے تحریک آزادی جیسا، ممتا بنرجی کا بیان. بی جے پی لیڈر کی شادی پر خطرہ، لڑکے والوں نے رکھی پارٹی چھوڑنے کی شرط. اتر پردیش 3 طلاق سے متعلق ایف آئی آر کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ 3 ہفتے میں 216 مقدمے ہوئے درج. پاکستان اپنی ناپاک کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کشمیر ہمارا تھا اور ہمیشہ رہے گا، کانگریس کا آیا بیان. مایاوتی اتفاق رائے سے دوبارہ بی ایس پی کی صدر منتخب. چدمبرم کی عبوری ضمانت نامنظور کرنے والے جج سنیل گور نے سنبھالا اہم عہدہ. افغانستان طالبان کے حملے میں 11 محافظین ہلاک. غزہ پولیس چوکیوں پر حملے، 3 پولیس اہلکار شہید. روس کی طرف سے ترکی کو ترک خلاباز کو خلا میں بھیجنے کی پیشکش کی. شام ادلب شہر پر اسد نواز طیاروں کی بمباری، 6 شہری ہلاک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ دونوں پرائم ٹائم کے نوٹیفیکیشنز آپ کو نہیں پہنچے ہیں. بعض ٹیکنیکل وجوہات یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ جو یہ نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچے. البتہ اس کا نوٹیفیکیشن ضرور پہنچا ہوگا. اگر پہنچ گیا ہوگا تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے پرائم ٹائم نہیں دیکھے وہ جائیں دیکھیں. کشمیر کی تازہ صورتحال اور دیگر اہم ترین موب لنچنگ اور بہت ہی افسوسناک خبریں جو آتی رہتی ہیں، جس پر جو ہندوستان کا ایک عجیب و غریب چہرہ سامنے لایا جاتا ہے، اس پر تبصرہ کیا گیا ہے. جائیں دیکھیں اور دوسروں تک پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں. بہرکیف ناظرین پہلی خبر ہے ہمارے شہر بنگلورو سے. ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف دینی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے جماع سال محتمم حضرت مولانا احمد معاذ رشادی کی رحلت کی خبر تو کل ہی آپ تک پہنچا دی گئی تھی. آج بعد نماز عصر مدرسے کے مسجد کے احاطے میں نماز جنازے کے بعد ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی اشرف علی باقوی نور اللہ مرقدہ کے بغل میں یا جوار میں تدفین عمل میں آئی. اس موقع پر مدرسے میں عوام کے ہجوم کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ پورا بنگلور امڑ آیا ہو. ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے اس غم میں برابر کے شریک رہے اور مولانا مرحوم کو دعاؤں سے نوازا. ملحوظ رہے کہ امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد رشادی دامت برکاتہم کی نیابت میں یہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. امیر شریعت کرناٹک مولانا معاذ رشادی مرحوم کے استاد بھی ہے. یاد رہے کہ حضرت مولانا احمد معاذ رشادی مرحوم اپنے والد بزرگوار سے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ دیگر درسی و مدرسے کی بیشتر ذمہ داریوں کو سیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو ادا بھی کر رہے تھے. فتویٰ نویسی کا کام بھی اپنے والد محترم کی نگرانی میں انجام دیا کرتے تھے. ان کے والد ماجد مرحوم مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی کئی ذمہ داریاں ان کے حوالے کر چکے تھے، جس کی وجہ سے سبیل الرشاد کی انتظامی امور سمیت درس حدیث وغیرہ کو بس بحسن خوبی انجام دے رہے تھے. ادھر 2 سالوں سے ان کی مقبولیت میں لگاتار اضافہ ہو رہا تھا اور مختلف جلسہ و جلوس میں ان کی شرکت ہو رہی تھی. بہت کم گو اور خندہ پیشانی سے ملنے والے مولانا احمد معاذ کل ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے اسپتال پہنچے تھے کہ وہیں ان کی طبیعت میں پریشانی نظر آئی اور کچھ ہی دیر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے مالک حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادارہ سیدھی بات کو بھی وہ بڑی پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ہمیشہ حوصلہ افزا جملوں سے ہمیں نوازتے تھے. جب کبھی کسی مجلس میں ملاقات ہوتی تو وہ ضرور اس بات کا اظہار بھی کرتے. اللہ رب العزت مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب کرے. ادارہ سیدھی بات پسماندگان کے غم میں برابر کا شریک ہے اور ان کے تمام چاہنے والے اور سبیل الرشاد سے وابستہ ہر فرد اور طالب علم کے غم میں اور استاد کے غم میں برابر کا شریک ہے. اللہ سے دعا گو ہے اللہ مدرسے کو بہترین نعم البدل نصیب کرے.
एक और खबर बेंगलुरु से। शहर बेंगलुरु के विलियम्सटाउन में वाक़ मशहूर एक्सेलेंट इंग्लिश स्कूल में तलबा और तालिबात की कुरान मजीद में दिलचस्पी देखते हुए शोबे हिफ्ज़ का आगाज कर दिया गया है। इसके आगाज के लिए कल एक मुख्तसर तकरीब का एहतिमाम स्कूल के बालाई मंजिल में किया गया था, जिसमें उलमाए किराम ने शिरकत करते हुए दुआया कलिमात से नवाजा। इस मौके पर हजरत मौलाना मुस्तफ़ा रिफाई जेलानी नदवी दामद बरकातुहुम ने तलबा से खिताब करते हुए तालीम के साथ साथ तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली और मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की फिक्रों के बारे में तफसीली बात रखते हुए कहा कि किस तरह निज़ाम तालीम को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इस इजलास के मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती अकबर सलीम नदवी जो अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, उन्होंने भी अपने पंदो नसाए से तलबा को नवाजा और स्कूल के बानियान, असातिज़ा और जिम्मेदारान को मुबारकबादी पेश करते हुए शोबे हिफ्ज़ के आगाज करने पर खुशी का इजहार किया और तलबा को खूब मेहनत करके पढ़ने और इस शोबे से भरपूर फायदा उठाने की तलकीन की। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा किराम में मौलाना समीर बेग नदवी, मौलाना अनीस नदवी, मौलाना मंजर आलम साहब, कारी फैयाज साहब और मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब अमानुल्लाह साहब, एडिटर सीधी बात जनाब अताउर रहमान साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा दीगर उलमाए किराम ने भी इस दुआया तकरीब में शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर मुंबई से। आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मुकामी यूनिट जमीयत उलमा हल्का मीरा भायंदर की जानिब से कोल्हापुर सांगली सैलाब मुतासरीन की इमदाद और राहत रसानी के लिए जमीयत उलमा मीरा भायंदर का एक वफ्द जमीयत उलमा हिंद के कायद हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद की निगरानी और सूबाई सदर मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब, सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की इमा पर कोल्हापुर सांगली के सैलाब मुतासरीन के लिए एक ट्रक खुर्दनोश का सामान और खतीर रकम के साथ रवाना हुआ, जिसमें मुफ्ती अब्दुल कलाम, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अंजार कासमी, मौलाना तैयब, मौलाना एहतिशाम, मौलाना सऊद व दीगर शामिल हैं। वाज़ेह है कि रवानगी से कबल एक दुआया तकरीब मीरा रोड जमीयत ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नाजिम तंजीम व सदर जमीयत उलमा जिला थाना मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा कासमी ने सैलाब मुतासरीन की नागुफ्तगी हालात और उनकी कसम पुरसी और जमीयत की जानिब से सैलाब के अव्वल दिन से की जाने वाली इमदाद और राहत रसानी पर रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद की निगरानी और सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की हिदायत के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके पर रिलीफ का काम जारी है। अब खबर कलकत्ता से। तनाज़ात की हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने एक बार फिर मुतनाज़ बयान देते हुए कहा है कि अगर मैं कत्ल व गारतगिरी पर उतर आऊंगा तो कोई नहीं बचेगा। दरअसल घोष बीजेपी वर्करों और लीडरों के खिलाफ मुबैना जाली केस पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात के तहत पुलिस मुकदमा कायम कर रही है। अगर हम इस पर उतर आएंगे तो कोई नहीं बचेगा। मशरिकी मदनीपुर के एक मीटिंग से खिताब करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में अब इस तरह की सियासत नहीं चलेगी। 22,000 केस बीजेपी वर्करों के खिलाफ हालिया दिनों में दर्ज किए गए हैं और ये सब के सब जाली और बेबुनियाद है। अब खबर नई दिल्ली से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचूरी सुप्रीम कोर्ट के बुध को फैसले के पेश नजर अपनी पार्टी के बीमार लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की इयादत के लिए जुमेरात को कश्मीर जाएंगे। सीताराम येचूरी ने आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को खत लिखकर उन्हें इस बात की इत्तला दी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो अपने मुआविन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की इयादत के लिए जा सकते हैं, इसलिए वो कल कश्मीर आ रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने मलिक को खत में लिखा है कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अपने साथ एक मुआविन ले जाने की इजाजत दी जाए। सीताराम येचूरी ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सत्यपाल मलिक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो यूसुफ तारिगामी से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा जब सीताराम येचूरी कश्मीर गए थे तो उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खवातीन महफूज नहीं है,
इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन बीजेपी हुकूमत खवातीन को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो कि आप महफूज हैं, और अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपको इंसाफ मिलेगा। प्रियंका ने कहा कि आवाज उठाने वाली लड़की लापता है या लापता कर दी गई है, उसके साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, आखिर ये कब तक चलेगा। एक दीगर ट्वीट में स्वामी चिन्मयानंद से अस्मदरी का केस हटाए जाने की खबर टैग करते हुए प्रियंका गांधी लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव मामला जैसा ही दोहरा लग रहा है। अगर कोई खातून बीजेपी लीडर के खिलाफ शिकायत करती है तो उसको इंसाफ मिलना तो दूर की बात, उसकी खुद की सिक्योरिटी की भी गारंटी नहीं रहती। अब खबर बिहार से। बिहार के वैशाली जिला वाक़े दाऊदपुर गांव में मुबैना छेड़खानी की मुखालिफत करने वाली एक ही फैमिली के 13 अराकीन पर बुध को तेजाब फेंक दिया गया, जिसमें 2 खवातीन समेत सभी लोग संगीन तौर पर झुलस गए हैं। वैशाली के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट राघु दयाल से यहां बताया कि मंगल को किसी बात पर दाऊदपुर गांव के रहने वाले नंद किशोर भगत की फैमिली के अराकीन का कुछ लोगों से तनाजा हो गया और तनाजा मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि दोनों फरीक में मारपीट के बाद मामला खत्म भी हो गया। बुध को दूसरे फरीक के लोग गुस्से में घर में घुसे और फैमिली के अराकीन पर तेजाब फेंक दिया। इस वाकये में 2 खवातीन समेत एक ही फैमिली के 13 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत संगीन बताई जा रही है। अब खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर में नाइत्तेफाकी की आवाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी अहम इदारों की क़ियादत सुबुकदोश नौकरशाह कर रहे हैं जो हुकूमत के लिए यस मैन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अब मगरबी बंगाल के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि हम इसकी तकसीम करने वाली सियासत की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज अपोजिशन के लीडरों को या तो धमकी देती है या पैसों से खरीद लेती है। बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुझे जेल में बंद कर सकती है लेकिन मैं बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं। एक और खबर मगरबी बंगाल से। बीजेपी लीडर ज़ैनुल आबिदीन की शादी की तैयारियां जोरों पर थी लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा माहौल ही बदल दिया है। ज़ैनुल आबिदीन का बीजेपी लीडर होना उनकी शादी का दुश्मन बन गया है और ये रिश्ता मुनक़ते होता हुआ महसूस हो रहा है। दरअसल मगरबी बंगाल की बीजेपी लीडर ज़ैनुल आबिदीन के बारे में लड़की वालों को यह पता नहीं था कि वो बीजेपी का लीडर है। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो फौरी तौर पर रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया और साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तक ज़ैनुल आबिदीन पार्टी नहीं छोड़ेंगे ये शादी नहीं हो सकती। 27 साल ज़ैनुल आबिदीन के लिए शर्त पूरी करनी मुश्किल है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि वो पार्टी और लड़की में से किसी एक को कैसे मुंतखब करे। हालात जैसे बन रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि शादी अब मुमकिन नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। 3 तलाक से मुतालिक कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में इससे जुड़े मुकदमों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आला मनसब पर फाइज एक अफसर ने मंगल को बताया कि उत्तर प्रदेश में 3 तलाक की मुतासिरा खवातीन अपने शौहरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए बड़ी तादाद में आ रही है। गुज़श्ता 1 अगस्त को मुसलमान औरत शादी पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2019 के नाफिज होने के बाद से लेकर 21 अगस्त तक रियासत में तलाक बिदअत के अभी तक 216 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा 26 मुकदमे मेरठ में, सहारनपुर में 17 और शामिली में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अफसर ने बताया कि मशरिकी उत्तर प्रदेश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी इंतखाबी हल्के वाराणसी में 3 तलाक के 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक फैलाई जा रही अफवाह पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर हमारा था और हमेशा रहेगा। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने बुध के रोज मीडिया से कहा कि हमने ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर इशू पर अक़वाम मुत्तहिदा में दी गई मुबैना अर्जी के हवाले से राहुल गांधी का नाम शरारत खेज तरीके से घसीटा गया है ताकि पाकिस्तान के जरिए फैलाए गए झूठों और गलत खबरों के अंबार को सच साबित किया जा सके। कांग्रेस तर्जुमान सरजेवाला ने मजीद कहा कि दुनिया में किसी को भी इस बात में अंदेशा नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कितनी भी साजिश कर ले, तरकीबें अपना ले, लेकिन इस सच्चाई को कभी बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कश्मीर में तशद्दुद फैलाने के लिए पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि वो कई इशूज पर मोदी हुकूमत से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये वाज़ेह करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली मामला है और पाकिस्तान या कोई दूसरा मुल्क इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर में तशद्दुद भड़का रहा है और दहशतगर्द हामी के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है।
अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी की रियासती दफ्तर में मरकजी मजलिस आमिला ऑल इंडिया स्टेट पार्टी यूनिट के जिम्मेदारों व पार्टी नुमाइंदों की मुनाकिद खुसूसी मीटिंग में बीएसपी की कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला मायावती को इत्तेफाक राय से दोबारा पार्टी का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। इत्तेफाक राय से बीएसपी का दोबारा सदर मुंतखब किए जाने के बाद मायावती ने पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो बीएसपी मूवमेंट के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। इस ज़िम्मे में न तो वो कभी रुकने वाली है और न ही झुकने वाली है। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक वजीर खजाना और दाखिला पी चिदम्बरम की जमानत नामंजूर करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ को पीएमएलए अपीलाट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वो गुज़िश्ता 22 अगस्त को हाईकोर्ट के जज के ओहदे से सुबुकदोश हो गए थे। सुनील गौड़ के हाईकोर्ट के जज के तौर पर अप्रैल 2008 में तरक्की हुई थी, जबकि 11 अप्रैल 2002 को उनकी मुस्तकिल तकर्रुरी हासिल हुई। अपनी मुद्दतकार के दौरान सुनील गौड़ ने कई अहम और हाई प्रोफाइल मुकदमात की समाअत की। जज सुनील गौड़ ने गोश्त कारोबारी मोइन कुरैशी से मुतालिक गैरकानूनी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले समेत मुतादिद बदगुमानी के मामलात की भी समाअत की थी। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे जज़ान में मुहाफिजीन के एक थाने पर तालिबान के हमले में एक मुहाफिज कमांडर और 10 मुहाफिजीन हलाक हो गए। फैजाबाद के कमिश्नर आलिफ शाह का कहना है कि फैजाबाद तहसील से मुंसलिक गुगलदाश गांव के एक थाने पर हमले के बाद झड़प हुई। कई घंटों तक जारी रहने वाले इस तसादुम में कमांडर और 10 मुहाफिजीन अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तसादुम में तालिबान को भी नजानी नुकसान पहुंचा है। इधर तालिबान ने अपने ऐलान में दावा किया है कि इस हमले के नतीजे में मुहाफिज थाने का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया है। अब खबर गजा की पट्टी से। गजा के मगरिब में 2 मुख्तलिफ पुलिस चौकियों पर धमाकों के नतीजे में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 3 तक पहुंच गई है। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक धमाकों में सलामी मजिद अल-नदीम, वाइल मूसा मोहम्मद खलीफा और आला जियाद अल-गजाबिली शहीद और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बयान में कहा गया कि आइंदा घंटों में राय आम्मा को हमले के बारे में तफसीलात से आगाह किया जाएगा और ये कि मुजरिम सजा से नहीं बच सकेंगे। मजीद कहा गया कि इसराइल और उसके एजेंट गजा की सलामती और इस्तेहकाम पर ज़रब लगाने की कोशिशों में है और इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऐसे मुतअद्दिद मंसूबों को नाकाम बना दिया जा चुका है। अब खबर रशिया से। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के सरबराह मेत्री रोगोजेन ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को खला में तुर्क खलाबाज भेजने की पेशकश की है। रोगोजेन ने मैक्स 2019 इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस फेस्टिवल के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुख्तसर मुलाकात की। मुज़ाकरात में रोगोजेन ने तुर्क खलाबाज को खला में भेजने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि आपके लिए हमारी एक मुश्तरक पेशकश है और वो ये कि आप जमहूरिया तुर्की के क़याम की 100वीं सालगिरह को तुर्क खलाबाज को खला में भेज कर मनाएं। अब खबर शाम से। शाम में असद इंतजामिया के तैयारों की इदलिब की रिहायशी बस्ती पर बमबारी के नतीजे में 6 शहरी हलाक हो गए हैं। मुखालिफिन के मुताबिक असद नवाज जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता रोज इदलिब के बाज़ कस्बों और देहातों पर बमबारी की। शिमाली मगरबी शहर इदलिब में सन 2011 से अब तक जारी खाना जंगी के दौरान मुखालिफिन का गढ़ रहा है, जिसकी आबादी मुहाजिरीन के हमरा 40 लाख तक जा पहुंची है, जिस पर कब्जे के लिए असद इंतजामिया एडी चोटी का जोर भी लगा रही है। शामी हुकूक इंसानी की तंजीम का कहना है कि साल रवा में अप्रैल से अगस्त तक के दरमियान इदलिब में 843 आम शहरी शहीद किए जा चुके हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।